News Services Division of All India Radio presents Employment News. Welcome to the program Employment News. I am Mattu JP Singh and with me is Abhishek. Today, we will be discussing about some vacancies in Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities, Center for Development of Advanced Computing, Indira Gandhi National Open University, Indian Institute of Technology Delhi, Policy and Law Division of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, IIM Shillong, Institute of Secretariat Training and Management, Delhi Jal Board, and Office of the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone. Applications are invited for appointment to 2 posts of Commissioner for Persons with Disabilities in the Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities under Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. The Office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities was set up under Section 57(1) of the erstwhile Persons with Disabilities, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act 1995 and continues to function under Section 74 of the Right of Persons with Disabilities Act 2016. Detailed powers, duties and functions of Commissioner for Persons with Disabilities and eligibility criteria along with all other relevant details including the application form are available in Department's website www.disabilityaffairs.gov.in. The eligible applicants may send their applications within 30 days of publication of this advertisement in the Employment News. Center for Development of Advanced Computing is a premier R&D organization of the Ministry of Electronics and Information Technology carrying out R&D in IT, electronics and associated areas. Applications are invited for the posts of project engineers on contract and on consolidated salary. The details regarding the post and how to apply are available at the website www.cdac.in. Interested candidates may visit careers page of www.cdac.in for detailed notification and to apply online on or before 15th November 2020. Addendum or for further communication in this regard, if any, will be notified in the website of Center for Development of Advanced Computing only. Indira Gandhi National Open University invites applications for 1 post of Research Associate in ICSSR Impress funded project titled Impact of Swachh Bharat Abhiyan on Rural Health and Hygiene Practices, a study of Uttar Pradesh and Bihar. The study aims to assess the impact of Swachh Bharat Abhiyan on rural health and hygiene practices like hand washing, open defecation, sanitation, etc. and document the behavior change and how it has affected the quality of life of people and impact on gender inclusion and overall equity. Under the project, data collection will be carried out in Uttar Pradesh and Bihar. The research associate will be required to assist the project director at IGNOU Delhi in the area of assignment. The prescribed application form is available with this advertisement. Application along with the recent CV with qualifications and research experience shall be emailed to icssrimpress2020@gmail.com within 30 days of this advertisement. Candidates selected for interview will be informed through email or phone calls only. No TADA will be paid if called for interview. Any addendum or corrigendum shall be posted on the IGNOU website www.ignou.ac.in. Indian Institute of Technology Delhi invites online applications from the Indian nationals for filling up 18 posts of Junior Assistant in Administration, Non-Technical. For further details or information regarding qualification, experience, general instructions, etc., kindly visit Institute website, that is www.iitd.ac.in, and please see column Jobs at IIT Delhi under the heading Non-Academic Positions. Last date for submission of application through online mode is 27th of November 2020. Applications are invited for engagement of 25 associates legal in the Policy and Law Division of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Complete details of the advertisement along with application form can be downloaded from the Ministry's website www.moef.gov.in. Eligible candidates may send their applications in the prescribed format along with all supporting documents to the concerned authority. A soft copy of the duly filled application form along with all supporting documents may also be sent to email ID policyandlaw-mef
@gov.in within the prescribed time limit. The last date for receiving applications in the prescribed format along with supporting documents is 17th November 2020. IIM Shillong, an institute of national importance, invites online applications for one post of security officer on contract for a period of 5 years initially and performance to be reviewed annually. The last date for submission of application is 18th of November 2020. For further details and submission of online application, please visit the website www.iimshillong.ac.in. Please refer to the Institute of Secretariat Training and Management's Vacancy Circular dated 29th May 2020 regarding the filling up of the post of Deputy Director Management Service on deputation basis in ISTM. Under Annexure 1A of the circular, in point number 10A2 of the said vacancy circular, the word "or" should be read as "and". Applications are invited for the post within a period of 15 days from the date of publication of this corrigendum in the Employment News and Rozgar Samachar. And now, let's discuss about Delhi Jal Board and the vacancy in it. The Delhi Jal Board was constituted on 6 April 1998 through an act of the Delhi Legislative Assembly incorporating the previous Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking. The Delhi Jal Board is responsible for the production and distribution of potable water after treating raw water from various sources like River Yamuna, Bhakra Storage, Upper Ganga Canal and groundwater, and also provides treatment and disposal of wastewater. The Delhi Jal Board provides water in bulk to the NDMC and cantonment areas. Sewage from these areas is also collected for treatment and disposal by the Delhi Jal Board. Services provided by Delhi Jal Board include supply of potable drinking water, supply of potable water through tankers whenever needed, supply of packaged water Jal in jars through Jal Suvidha Kendras, treatment and disposal of sewage, supply of biogas, /sludge manure, /treated wastewater, testing of water samples, technical support for installation of rainwater harvesting system through rain centers and divisional office. Now, the vacancies. Applications are invited for filling up the post of law officer on deputation in Delhi Jal Board from the eligible officers. Last date of receipt of application is the date of completion of 60 days from the date of publication of this advertisement in Employment News. The eligibility criteria and application format can be downloaded from Delhi Jal Board website, that is www.delhijalboard.nic.in. Applications are invited from willing and eligible candidates for filling up the following posts on deputation basis in the Office of the Development Commissioner, Noida, Special Economic Zone. One post of Assistant Development Commissioner, one post of Section Officer Accounts, and two posts of Assistant. The last date for the receipt of applications through proper channels shall be on or before 60 days from the date of publication of the vacancy advertisement in Employment News. The eligibility conditions and other details are given in the vacancy circular dated 16th October 2020, which are available under the vacancy page at website www.nsez.gov.in. Information about these vacancies has been published in Employment News. There are more vacancies in the journal. If you wish to read about these employment opportunities in greater detail and more, you may refer to the job journal titled Employment News for Information in English, Rozgar Samachar for Information in Hindi, and Rozgar Samachar for Information in Urdu. It is published by the Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, and made available on every Saturday. With this, we come to the end of this program. We will meet again tomorrow at 4:20 p.m. You are listening to Employment News. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our website, newsonair.com. You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com with Employment News as subject. सरहदी इलाकों के सभी गांवों को हर तरह की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि लोगों की हिजरत को रोका जा सके। वो आज गुजरात के कच्छ जिले में धोरधो के मकाम पर सरहद विस्तार विकास उत्सव 2020 का इफ्तिताह कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि सरहदें तभी
और ज्यादा महफूज होंगी कि जब वहां रहने वाले लोगों को अच्छे मेयार जिंदगी के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हों। जनाब अमित शाह ने जोर देकर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 6 साल में सरहदी गांवों में बुनियादी ढांचे के फरोग का जो काम हुआ है वो पिछले 50 साल के काम से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मुल्क अपनी दाखिली सलामती को मुस्तहकम बनाए बगैर तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। जनाब अमित शाह ने कहा कि सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाना जरूरी है ताकि इन इलाकों से लोगों के मुंतकिल होने के सिलसिले को रोका जा सके। देश की पूरी भू सीमा जहां पर लगी है सब जगह पर ऐसे सीमांत विकासोत्सव करने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है और आगे पर प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने वाले इस विकास उत्सव का उद्देश्य है सीमावर्ती गांवों में हमारे जो नागरिक रहते हैं उनको इतनी ही सुविधा मिले जितनी अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई के नागरिकों को मिलती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सरकार ने गांव वालों के साथ तरक्याती मुज़ाकरात की खातिर कई मकामात पर सरहद विकास उत्सव मुनक्किद करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में कच्छ सरहद पर वाक़े आखिरी गांव धोरदो इस सिलसिले की पहली कड़ी है। जनाब अमित शाह ने यह ऐलान भी किया कि बीएसएफ की डिस्पेंसरियां और अस्पताल अब सरहदी गांवों के लोगों को इलाज मुआवजे भी फराहम करेंगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए देही तरक्कियात के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वलवला अंगेज क़यादत के तहत गांव को बड़े तरक्कियाती फंड फराहम किए जा रहे हैं जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। बिहार में नई सरकार की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। असेंबली इंतखाबात में एनडीए की कामयाबी के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के सदर नीतीश कुमार ने कहा कि आवाम ने एनडीए के हक में वोट दिया है और वो रियासत में सरकार बनाएगा। आज शाम पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अभी ये फैसला नहीं किया गया है कि हलफ बर्दारी की तकरीब दिवाली के बाद होगी या छठ के बाद। जनाब नीतीश कुमार ने कहा कि कल पटना में चारों पार्टियों जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के अरकान की मीटिंग होगी जिसमें एनडीए लीडर के बारे में तबादले ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में सरकार की तश्कील के हर पहलू पर गौर किया जाएगा। इससे पहले दिन में जनाब नीतीश कुमार ने पटना में पार्टी दफ्तर में जेडीयू के नए अरकान असेंबली के साथ मीटिंग की। उधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के सरबराह जीतन राम मांझी ने अपने 4 नए मुंतखब अरकान के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात की। विकासशील इंसान पार्टी के सरबराह मुकेश साहनी भी जनाब नीतीश कुमार से मिलने गए। उधर आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव को अजीम इत्तेहाद कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। ये फैसला आरजेडी, कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों के अरकान असेंबली की मीटिंग में किया गया। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 92.89% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 52,000 से ज्यादा कोविड मरीज सुरूब सेहत हो चुके हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक 80,64,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए हैं। सरदस्त मुल्क में कोविड-19 के कुल 4,89,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 47,905 नए मामलों का पता चला है जिसके बाद इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 86 लाख से ज्यादा हो गई है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि एक बाहम, मजबूत और कार्रवाई करने वाली आसियान सबकी सलामती और तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कोई मुल्क खुद कफील तभी बनता है जब वो सोच, अमल और वसाइल में खुद कफील बने। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मईशत को तक़वियत और फरोग देने के लिए 12 अहम इमदादी इक़दामात का ऐलान किया है। उन्होंने रोजगार के नए मौक़े पैदा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरहद से मुत्तसिल गांवों को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी ताकि नक़ल मकानी को रोका जा सके। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 92.89% हो गई है और हुकूमत साजी के लिए बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। This is All India Radio. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India-ASEAN Summit. The participants are Skand Ranjan Tayal, former diplomat, and Simran Sodhi, journalist.
Prime Minister Narendra Modi today addressed the 17th ASEAN-India Summit, and the PM in his remarks said that ASEAN has always been the core of our Act East policy. He also said that there are many similarities between India's Indo-Pacific Ocean initiatives and ASEAN's outlook on Indo-Pacific. Ambassador Tyal, when you see the ASEAN-India Summit, which took place in a virtual format today, and the Prime Minister emphasizing that this has been the core of our Act East policy, how do you see the relationship between ASEAN and India today? Prime Minister rightly said that ASEAN is at the core of our Act East policy. As all our listeners know, the Look East policy started in 1992-93 by Prime Minister Narasimha Rao at that time. But during Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's time, the relationship with ASEAN was raised and it became annual summit-level interaction between the Prime Ministers of India and the government or presidents of ASEAN. So now it is the 17th summit, which unfortunately had to take place in a virtual format. Last year, Prime Minister had gone to Bangkok in November for the 16th summit. And over the years, the relations between India and ASEAN as a group have grown tremendously. ASEAN headquarters are at Jakarta in Indonesia, and we have a separate ambassador there. And over the years, there have been plans of action, and there has been much achievement on different areas, whether it is economic cooperation. Now we also have a strategic partnership with ASEAN, which was declared at the 20th anniversary of India-ASEAN interaction. So the relations have been growing very well, and in ASEAN members' core strategy, also India has a very important place, being third largest economy in Asia. Now trade between India and ASEAN countries is almost $100 billion. Of course, there will be some setback this year because of the COVID-19 virus, but investment relationship, the trade relationship, as well as the people-to-people relationship between India and ASEAN is going very well and becoming stronger by the day. Ambassador Tyal, we also see that there is a lot of literature which comes out when we talk of ASEAN, specifying that maybe this is going to serve or is also at present serving as some form of a counter to check the rising aggressive behavior of China in the Indo-Pacific. Do you feel that ASEAN can act as a counter or can act as a force which kind of compels China to stop its aggressive behavior or to lessen its aggression? The 10 member countries of ASEAN have different levels of relationship and friendship and commercial transactions with China. And for many of them, China is their primary or the highest trade partner. But also in South China Sea, China has been very aggressive, and it has encroached upon the maritime boundaries of maritime features of Vietnam, of Malaysia, of Indonesia, of Brunei, and also of Philippines. So the 5 countries of ASEAN have strained relationship with China as far as their maritime boundary is concerned. And the entire strategy of Indo-Pacific peace and stability postulated by India, by United States, by Japan, etc., is based on respect for territorial integrity, on maritime security, and on shared progress, and also that all the countries, including China, should follow international rules-based system. Now, ASEAN has also come with a paper which is called Outlook on Indo-Pacific. Of course, India has its own Indo-Pacific Ocean Initiative, and as Prime Minister said in his statement today at the virtual summit, that there are many similarities between ASEAN's Outlook on Indo-Pacific and India's Indo-Pacific Ocean Initiative. And the main objective of both ASEAN and India is that the
entire Indo-Pacific region, including South China Sea. There should be maritime security. There should be shared progress for all, whether it is the 10 ASEAN member countries or other members of East Asia. Every country's territorial integrity should be honored, and system of governance, whether it is of transit of ship, whether it is air connectivity, every country should follow international rules-based system. So the objectives of ASEAN as a group and ASEAN members individually as well as of India are the same. Mr. Kyal, do you feel that maybe ASEAN could be developed into something like the Quad? We've had recent meetings of the Quad where we had US, Japan, Australia, India getting together and discussing the tensions in the region. And Quad also more or less today is being seen as a forum which can help to counter China. Do you feel that this comparison or this attempt to compare Quad and ASEAN is fair? ASEAN as a group has more focus on economic cooperation, and on strategic side their main focus is to maintain peace and stability in the region. All the countries of ASEAN are rather small, and they are reluctant to take any position which is openly against China. We have seen that in the case of Philippines, when China had occupied their Scarborough Shoal and many other maritime features, and Philippines got a decision in its favor from the arbitration panel of UN Conference on the Law of the Sea, which blamed China and did not accept China's claims, but Philippines was not in a position to get that verdict enforced, to get China to leave areas which were occupied by it. So we have to understand that these countries are, compared to China, small. So my own assessment is that these countries will have full sympathy with the objectives of Quad, with the objectives of India, that China should be contained, China should not become very aggressive, China should play by the rules, but they will not openly come in the support of Quad, and in my assessment, they will not become participant in the Quad dialogue. Mr. Kyal, going from ASEAN, we also have the RCEP discussions, and we have seen that India has so far been reluctant and we have refused to sign RCEP. Again, the fear is that, it is the cheap Chinese goods which will enter the Indian market, and it is also somewhere unfair to India if we sign RCEP in its current form. But we also see that the other ASEAN nations have been willing to come on board on RCEP. How do you see this discussion around RCEP as we move forward? RCEP was signed at the last summit in Bangkok, and at the last minute India did not sign a regional comprehensive economic partnership which creates free trade market between the 10 members of ASEAN and 6 other countries which include China, India, Japan, South Korea, New Zealand and Australia. And we have made it very clear to the other 14 members of this RCEP that India cannot allow any tariff concession to Chinese goods, as the Chinese goods system is not transparent, and there are hidden subsidies and they unfairly compete in the market. So our partners in ASEAN understand what are the real issues and concerns because of which India did not sign or did not join Regional Comprehensive Economic Partnership. But here I would like to emphasize that India has a free trade arrangement with ASEAN as a group, and also bilateral free trade agreements with individual members of ASEAN. Mr. Kyal, we have seen one more issue in the backdrop of the ASEAN summit, and that has been the US-China tensions. And we have seen that under President Donald Trump, US-China tensions have flared up quite badly, whether it was the corona crisis where President Trump has repeatedly referred to that the Chinese virus, the trade wars between US and China that has cast another shadow. Do you feel that this US-China tensions also takes its toll on organizations like ASEAN? And is there a feeling that as the administration in
the Washington DC changes, we might see a lessening of these tensions? This is called the Asian century, and if we look back, since the end of the Vietnam War in the 70s and after the China-Vietnam clashes of 1979 and the end of the Cambodian problem in the mid-80s, the whole of East Asia has been remarkably politically stable and free of wars and conflict. And after that, all the countries of the region have grown economically, have become more prosperous, have become part of the global value chains. And the reason is that there is peace and stability and tranquility in the entire East Asia. And ASEAN countries very much understand this. They see that China is trying to disturb the status quo. It is trying to become the most strong power in whole of East Asia, whole of Indo-Pacific. Their objective is to push out America. And most of these countries, ASEAN countries, feel that United States is a force of stability in Indo-Pacific region, and it must continue with its very robust presence in the region. At the same time, ASEAN countries do not want that there should be any very direct conflict or confrontation between United States and China in this region, in East Asian region, in South China Sea. Because if the theater of any conflict, any war becomes this region, then certainly the victims would be these members. Ambassador Kyle, would you say that there is likely to be a change of attitude by the U.S. towards China once we have Joe Biden administration starting January of 2021? Or do you feel that the U.S. will continue to push back at China just as strongly as we have seen in the presidency of Donald Trump? If one looks at the statements made by elect Biden himself, he had written a very long paper in the magazine Foreign Affairs in March, and the statements by other Democratic leaders, America has now understood that a challenge eminence in the world is coming from China, economic challenge, technological challenge, and a strategic challenge, and America has to stand up to China. Now, whether it is trade, whether it is Indo-Pacific, and whether it is the future technologies, I believe that President Joe Biden will continue to be tough and continue to challenge China and not give it a free field, which unfortunately had been given by United States to China in the last 2 or 3 decades. The only difference one can foresee is that President Donald Trump's working methods are more blunt, more direct, and very sudden. And perhaps Joe Biden will take a more stand of negotiations and discussions, but it will continue to be a tough policy against China, challenging China's desire to dominate first East Asia, Indo-Pacific, and then the world, and reduce United States to a number 2 power in the world. Ambassador Kyle, when we look at the ASEAN-India cooperation, and we also see that the economic cooperation, there is great potential that is yet to be achieved, and there are a lot of areas in which this relationship can grow further. Which are the 3 focus areas that you would point out to? There was a ministerial meeting of ASEAN and India in September 2020, where a plan of action for cooperation between ASEAN and India for the next 5 years, that means 2021 to 2025, was adopted. It has focused on 4 or 5 areas. One, of course, is connectivity, and it is hoped that the trilateral highway between our northeast from Manipur via Myanmar to Thailand would be completed. Then there is more scope for maritime cooperation, and core of our relationship will continue to be trade and commerce and education and capacity building, and particularly in the 4 sort of developing countries of ASEAN, Cambodia, Myanmar, Laos, and Vietnam. India has established IT centers, medical centers, and other capacity building programs. So connectivity will not only be physical connectivity by road, but also a digital connectivity and a cyber connectivity. And I believe there would be good progress in these areas. With this, we bring today's discussion to an end. Thank you. Thank you. You were listening to a discussion on India-ASEAN Summit. The participants were Skand Ranjan Tayal, former diplomat, and Simran Sodhi, journalist.
This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our website, newsonair.com. You may email your opinion about the program at airnsdtalks@gmail.com. ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण के वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। खुशियों की सौगात लिए त्योहारों के इस मौसम को हम सब हंसी, खुशी और पूरे उत्साह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पर्व त्योहार हम सब में पॉजिटिविटी और नई ऊर्जा का संचार जो करते हैं। इस बार का ये फेस्टिव सीजन पहले से थोड़ा अलग है, क्योंकि इस समय ये न्यू नॉर्मल में मनाए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बाजारों में भीड़ है, बहुत सारी चीजों की खरीदारी करने के लिए आप ढेरों सामान को टच करिएगा। ऐसे में बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना मत भूलिए। और हाँ, प्रधानमंत्री के जन आंदोलन से भी जरूर जुड़िए। उससे जुड़ने के लिए आपको करना बस ये है कि आप जहां भी जाइए मास्क जरूर पहनिए, अपने हाथों और मुंह को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, साबुन पानी से साफ करते रहिए और सुरक्षित दूरी का पालन भी करिए। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर संजय के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर संजय, आज वर्ल्ड निमोनिया डे है और इस अवसर पर आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि निमोनिया और कोविड क्या एक दूसरे से मिले जुले हैं, क्या इनका अंतर संबंध है? देखिए, निमोनिया जब भी लंग में कोई इन्फेक्शन होता है जी, तो उसको हम निमोनिया कहते हैं जी। तो कोविड में भी लंग का इन्फेक्शन हो सकता है जी। निमोनिया के कई कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया है, वायरल निमोनिया है। तो कोविड एक ऐसा वायरस है जो कि निमोनिया कर सकता है जी। तो निमोनिया एक लक्षण है और इस लक्षण के कई कारण हैं और उनमें से एक कारण कोविड भी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 15 से 21 अक्टूबर के बीच जो दिल्ली में सेरोलॉजिकल सर्वे हुए थे, उसके नतीजे ये कह रहे हैं कि 25% लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, या वो अब भी संक्रमित हैं, उनमें एंटीबॉडीज मिली हैं। इस सर्वे के परिणाम पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे इससे आगे की रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी? देखिए, कोई भी जब नया वायरस आता है तो पूरी कम्युनिटी में उसका स्प्रेड होने में, हर्ड इम्यूनिटी आने में जी कम से कम 1.5 से 2 साल तक का समय लगता है। बिल्कुल। तो अभी कोरोना वायरस को आए हुए 6 से 9 महीने हुए हैं जी। तो यह मानकर चल सकते हैं कि हम करीब 40% या 50% के आसपास हमारा पीरियड अभी निकला है जी। तो 25% का जो फिगर है वो ठीक फिगर है और हमारे एस्टिमेट के आसपास ही बैठता है जी। लेकिन अगर आप देखें, एक सर्वे जून में हुआ था जी, उस समय 21% के आसपास थी पॉजिटिविटी रेट। बिल्कुल। आज 25% है जी। तो अगर हम हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ दें जी, तो वायरस की नेचुरल जो प्रक्रिया है वो 1.5 से 2 साल लगेगी पूरे कम्युनिटी में एक 70 to 80% लोगों में आने में, जो कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है जी। इसीलिए हमारा प्रयास यह है कि हम वैक्सीन के माध्यम से इस
एपिडेमिक पे कंट्रोल कर ले जी, ताकि हमें उस फिगर को चेस करने की जरूरत न पड़े। बिल्कुल ठीक। तो समय समय पर देश की राजधानी दिल्ली सहित भारत के अलग अलग हिस्सों में सेरोलॉजिकल सर्वे किए जा रहे हैं और उससे यही पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो समुदाय है, जो समाज है, उसमें संक्रमण कितना फैल गया है। डॉक्टर संजय, अगर वैक्सीन की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें सतर्कता बरतनी ही होगी और जो प्रधानमंत्री का जन आंदोलन है उससे हर व्यक्ति को जुड़ने की जरूरत है। वैक्सीन से जुड़ी दो खबरें हैं। पहली खबर यह है कि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन बन रही है उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 4 करोड़ खुराक तैयार कर ली है। अब ऐसी खबर को पढ़कर जहन में कई सवाल उठते हैं कि क्या ये पूरी तरीके से इसका परीक्षण सकारात्मक रहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 4 करोड़ इसकी खुराक तैयार कर ली? देखिए, जब भी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है जी, जिसमें हम कोशिश किया करते हैं कि कम से कम समय में जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें, जी, तो हमारी तैयारी पहले से ही चालू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ट्रायल रिजल्ट सितंबर में लैंसेट न्यूरोलॉजी जर्नल में आए जी, और उसी के बेसिस पे पूरी दुनिया के कई जगहों पे जी, हिंदुस्तान में, ब्राजील में और कई यूरोपियन कंट्रीज में जी, फेज 3 स्टडी चल रही है। ठीक है इसके रिजल्ट भी अब जल्दी ही आने वाले हैं। जी, लेकिन जब कोई भी वैक्सीन फेज 3 में जाती है जी, तो उसके पहले उसके सेफ्टी और एफिकेसी दोनों का परीक्षण हो जाता है। तो चूंकि वैक्सीन को सेफ और एफिकेसियस माना गया है जी, तो एक एस्टिमेट बनाकर कि कितने लोगों को वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी जी, उसका प्रोडक्शन पहले से चालू हो जाता है। जी, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी जो 7-8 अरब की आबादी है जी, उसको हम ओवरनाइट प्रोडक्शन करके हम वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो इसीलिए एक बड़ी आबादी को कवर अप करने के लिए जी, वैक्सीन का प्रोडक्शन भी पहले से ही चालू हो जाता है, जी, ताकि जैसे ही हमें अंतिम परीक्षण के परिणाम मिले जी, और उसकी सेफ्टी और उसकी एफिकेसी बिल्कुल 100% वो लगे कि हाँ इसको यूज किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। तो उस समय हमारे पास इतने पर्याप्त डोजेज हों जी, जिससे कि हम कुछ लोगों को जरूर कवर कर लें, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हैं या हमारे पुलिसकर्मी हैं या जो वल्नरेबल लोग हैं जैसे एल्डरलीज हैं, तो जी, वो हमारे प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसी की तैयारी के मद्देनजर जगह जगह वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल एक संभावना बरकरार है एस्ट्राजेनेका के साथ कि आने वाले समय में वहां से अच्छी खबर मिल सकती है और हमारे देश के लिए एक अच्छी बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर इस वैक्सीन के प्रोडक्शन में है। तो भारत में भी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अगर कोई भी वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आधिकारिक मंजूरी मिल जाती है तो सरकार ने प्लान बना रखा है कि कैसे वो देश के हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से राजधर मिश्र जी हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। डॉक्टर साहब मेरे नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे 2 सवाल है। जी सर मेरा पहला सवाल है कि सर दिल्ली में अभी बहुत तेज कोरोना बढ़ रहा है। जी। सर लापरवाही है या ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है? ठीक है। और सर मेरा दूसरा सवाल है सर कि मुझे 2 दिन से ठंड देकर बुखार आ रहा है, तो सर कहीं कोरोना नहीं हो गया सर? डॉक्टर संजय, इनका पहला सवाल यह है कि जो दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ आंकड़ों के नजरिए से एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? लापरवाही या फिर ज्यादा टेस्ट होना? देखिए, इनका सवाल काफी अच्छा सवाल है जी। और चूंकि हम दिल्ली में ही रहते हैं जी, तो हमारे मन में भी एक एंजाइटी और एक दुविधा वाली बात है कि केसेज आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। जी। तो इसके 2 स्पष्ट कारण नजर आ रहे हैं। जी। पहला कि अभी आपने देखा होगा कि
पॉल्यूशन की मात्रा काफी ज्यादा है। बिल्कुल। तो चूंकि पॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा है तो हवा का प्रसार नहीं होता है जी। और हवा का प्रसार नहीं होने की वजह से जो वायरस है वो एक सीमित क्षेत्र में हो सकता है कि ट्रेवल करे जी। तो उसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं जी। दूसरा जो कारण हो सकता है कि जब तापमान में गिरावट आती है, जैसा कि हमने पहले भी सोचा था कि जब सर्दियों का मौसम आएगा तो फ्लू का सीजन आते हैं, फ्लू के 2 सीजन आते हैं, एक स्प्रिंग आता है, एक ऑटम आता है जी। और इस समय आमतौर पर भी फ्लू होते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको हल्का बुखार है जी। और कई लोगों को सर्दी जुकाम बुखार ये बड़ा कॉमन है इस सीजन में जी। तो ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्टिंग के लिए जाते हों और उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट की संख्या ज्यादा हो। बिल्कुल। तो हर फ्लू कोरोना नहीं है जी। लेकिन हर फ्लू को कोरोना के लिए टेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी कोविड वायरस नया वायरस है जी। और कोविड वायरस की टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है। सरकार इसकी दिशा में काफी प्रयत्नशील है और जो हमने बताया कि एक प्रदूषण जी और दूसरा कि तापमान में कमी जी, ये 2 मुख्य वजह नजर आती हैं जिसकी वजह से कोविड के केसेस दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं। जी। डॉक्टर संजय, राजधर जी का दूसरा सवाल ये था कि पिछले 2-3 दिन से उन्हें ठंड लगकर बुखार की समस्या हो रही है। क्या ये कोरोना से जुड़ा मामला हो सकता है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि ठंड के मौसम के पहले जी और ठंड के मौसम के बाद जी, जैसे स्प्रिंग और ऑटम 2 ऐसे सीजन हैं जिसमें फ्लू और वायरल इलनेसेस की संख्या बढ़ जाती है जी। तो इसमें थोड़ा बुखार आना, जुकाम होना, छींक आना, गले में खराश आना ये बहुत ही कॉमन है जी। लेकिन अगर आपको जरा भी लगता है कि इसमें आपको कुछ चिंता हो रही है या ऐसा लगता है कि कोविड के लक्षण हो सकते हैं, कोविड के लक्षण भी इसी से मिलते जुलते हैं जी। लेकिन कोविड में एक चीज जो अलग होती है जी कि कोविड में बुखार तेज आता है जी और चूंकि बुखार तेज आता है जी, तो उसके कुछ सिम्टम जैसे जुकाम, गला खराब होना बाकी फ्लू से मिलते हैं तो कई बार एक ओवरलैप की स्थिति बन जाती है। तो उसमें बेहतर यही होगा कि आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अगर आपको लगता है तो आप टेस्ट करा लें। जी बिल्कुल। पहले बहुत समय ऐसा होता था कि हमें अगर इस तरह के लक्षण होते थे तो हम खुद ही दवाइयां खा लेते थे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे हैं और कई माध्यमों से भी ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है सरकार कि इस समय यानी कोरोना काल में खुद से दवाइयां न खाएं, थोड़ी बहुत परेशानी होने पर भी आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें और पहले ये तय कर लेने दे डॉक्टर को कि कौन सी दवाई खानी है और कोरोना का जांच करवाना है या नहीं। राजधानी दिल्ली से वजीर जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है सर, तो हमें काम पे तो जाना ही पड़ेगा, तो इससे हमें कैसे बचना पड़ेगा कोरोना कालों में, ये बताएं सर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हर कोई धीरे धीरे चिंतित होने लगा है क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये जानना चाहते हैं कि जब ये काम पर जाते हैं, प्रदूषण के बीच ही जाना है, तो ऐसे में खुद को कैसे सुरक्षित रखें? देखिए, जो कदम हम पहले से उठा रहे हैं जी, जैसे मास्क पहनना और सैनिटाइजर का यूज करना या हाथों की बार बार सफाई, 2 गज की दूरी बना के रखना, अगर हम ये 3 बेसिक चीज अभी भी करते रहे जी, तो प्रदूषण हो या ठंड में आने वाला मौसम हो, हम कोरोना को काफी हद तक मात देने में सफल होंगे। बिल्कुल। हुआ यह है कि चूंकि अभी पर्व त्योहार का मौसम है, बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ काफी उमड़ रही है जी, तो लोग भूल जा रहे हैं जी
कि मास्क जरूरी है, लोग भूल जा रहे हैं कि 2 गज की दूरी जरूरी है जी। तो लोगों की लापरवाही भी एक काफी हद तक एक कारण है नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का जी। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सब लोगों को यह कहना चाहूंगा जी कि इस लापरवाही से बचने की कोशिश करें जी। खुद भी बचे और लोगों में भी संदेश फैलाएं जी कि पर्व त्योहार के मौकों पे भी आप भीड़ भाड़ न करें जी। आप पर्व त्योहार अगले साल मना सकते हैं जी। आप थोड़ी सी कम स्केल पे मना सकते हैं जी। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करिए जी। डॉक्टर संजय, एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल लोगों के जहन में है, जैसा कि आप चर्चा कर रहे हैं कि पर्व त्योहार में एक जिम्मेदारी को प्रदर्शित करने का ये बहुत सही समय है। लोगों का कहना है कि बाजार हमें जाना ही है, जरूरी चीजें जो हैं वो खरीदनी ही है और इस समय त्योहारों के मौसम में बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है। ऐसे में सुरक्षित दूरी का पालन कैसे करें? देखिए, बाजार में होता यह है कि जैसे खरीदारी करना है तो एक घर से 5 लोग जा रहे हैं जी या 4 लोग जा रहे हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप खरीदारी करने एक इंसान भी जा सकता है जी। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम इसको कम्युनिटी लेवल पे या एक आंदोलन की तरह नहीं लेंगे जी तब तक अंदर से एक डिसिप्लिन नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक। और जब तक अंदर से डिसिप्लिन नहीं आएगी तब तक हमारे जो कार्य शैली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम इसको इस सीरियसनेस को समझें, इसकी गंभीरता को समझें और इसकी गंभीरता को देखते हुए कोशिश करें कि अगर हम बाजार में जाते हैं तो पूरी भीड़ लेके ना जाए, एक आदमी जाए और ऐसे समय पे जाए जिस समय भीड़ कम हो। बहुत सही संदेश दे रहे हैं डॉक्टर संजय कि त्योहारों के इस मौसम में अगर आपको खरीदारी करनी है तो परिवार से कोई एक व्यक्ति ही जाए और वो भी आप अपने आस पड़ोस में जब रहते हैं तो आपको पता होता है कि किस समय ज्यादा भीड़ होती है, तो उस समय बाजार जाने से बचें। और बिल्कुल सही बात है, ये संकट का दौर है और इस दौर में अगर विकल्पों को तलाशा जाए और बेहतर विकल्प आप अपने लिए सिलेक्ट करें तो आपको और आपके परिवार को त्योहारों के इस मौसम में संक्रमण से बचाने में बहुत फायदा हो सकता है। ओडिशा से बुलू पटनायक जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। माय नेम इज बुलू पटनायक, केउंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट। जी। माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन हैंड सैनिटाइजर? डॉक्टर संजय ये जानना चाहते हैं कि जो सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं या बाजार में बहुत सारे सैनिटाइजर उपलब्ध हैं, उनमें कितना प्रतिशत कम से कम अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए? देखिए, बाजार में कई तरह के सैनिटाइजर हैं और जब भी आप सैनिटाइजर खरीदने जाएं तो यह देखें कि वो सैनिटाइजर जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में भी जो सैनिटाइजर आते हैं जी वो भी अलग अलग जैसे ब्रांड के आते हैं, लेकिन जो आमतौर पर जो सैनिटाइजर होते हैं उसमें अल्कोहल की मात्रा करीब 2 से 3% के आसपास होती है जी। तो आप कोशिश यह करें कि जो ब्रांडेड सैनिटाइजर हैं और जो सैनिटाइजर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, आप किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं या किसी पैरामेडिकल स्टाफ से बात कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप यह कोशिश करें कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, जैसे कुछ सैनिटाइजर होते हैं उसमें डाइल्यूशन डिफरेंट होता है अल्कोहल का जी। तो जो अल्कोहल का डाइल्यूशन डिफरेंट होता है, तो अगर आप सीडीसी की गाइडलाइन पढ़ें जी, सीडीसी एक अमेरिका की संस्था है जी, तो सीडीसी की जो रिकमेंडेशन कहती है कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है जी, हैंड सैनिटाइजर है, उसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए जी। तो 60% अल्कोहल का मतलब क्या है कि उसमें जो डाइल्यूशन यूज किए गए हैं जी, वो अल्कोहल की मात्रा 60% के आसपास है। तो अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं सैनिटाइजर के जी, लेकिन आप कोशिश यही करें कि जब भी सैनिटाइजर यूज करें आप अपने डॉक्टर से या तो बात कर लें या पैरामेडिकल स्टाफ से बात कर लें और उसके द्वारा रिकमेंडेड सैनिटाइजर आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल ठीक है।
मुंबई से वजीर अहमद जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए वजीर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता था कि ये अपना अखबार में मैं एक दिन देखा कि फिटकिरी, अपना ये सेविंग के बाद फिटकिरी लगाते हैं, वही फिटकिरी जी, और शक्कर, इसका जो है पीस करके चूरन बना लिया जाए जी, और 14 दिन तक जो है जी, शाम को पानी में घोल के या एक गिलास दूध में घोल के पी लिया जाए जी। तो उससे आदमी की खांसी, सूखी खांसी और बुखार भी हो पुराना तो वो ठीक होता है जी, ऐसा लिखा हुआ था उसमें जी। तो क्या ये मैं ट्राई तो किया, मेरे को खांसी था जरा, वो ठीक हुआ जी। और बुखार भी ठीक हुआ, तो क्या ये कोरोना के लिए भी ठीक हो सकता है कि नहीं? डॉक्टर संजय, जब से ये कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीजें पढ़ने को मिल रही हैं और उसी से जुड़ा ये सवाल है वजीर जी का कि फिटकिरी और शक्कर को चूर्ण बनाकर शाम के समय पानी या दूध के साथ लेने से खांसी और बुखार में आराम आता है। ये आपसे सलाह चाहते हैं कि क्या सही में कोई वैज्ञानिक तथ्य है इसके पीछे? देखिए, जब से आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से कोरोना का संक्रमण आया है जी, तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के गलत इन्फॉर्मेशन, और एक कई बार ये काफी घातक भी हो सकता है। बिल्कुल। जैसा ये कह रहे हैं फिटकरी खाना, जी, फिटकरी लगाने के लिए तो ठीक है जी, लेकिन फिटकरी खाना घातक हो सकता है, यह स्वास्थ्य के लिए डेंजरस हो सकता है जी। तो कोई भी इस तरह का काम ना करें जिससे कि आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचे, और इस तरह की कोई भी गतिविधि करने के पहले आप उसके अंजामों के बारे में सोच लीजिए। बिल्कुल। तो आप मैं तो इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं कि इस तरह की कोई भी कहीं से अगर आपने पढ़ा है तो इसको दोबारा प्रयोग न करें आप। जी बिल्कुल, जो भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सब के लिए डॉक्टर संजय का यही संदेश है कि इस तरह की कोई भी जानकारी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं या कोई आपको बताता है तो उस पर अमल करने से पहले किसी डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। ऐसा न हो कि कुछ बेहतर पाने की चाह में आप अपना नुकसान कर बैठें। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्ते। और पूछना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर जितना भी गाड़ी है, सार्वजनिक परिवहन, कोई उसमें भेड़ बकरी की तरह आदमी बैठता है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी कोई पालन नहीं है जी, इसमें आदमी कैसे रहे? डॉक्टर संजय, बहुत ही व्यवहारिक सवाल है इनका। हर राज्य में परिवहन सेवाएं शुरू हो गई हैं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। ये यही जानना चाहते हैं कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लोग सट कर बैठ रहे हैं, ऐसे में खुद को कैसे बचाएं? देखिए, इनका कहना बिल्कुल सही है कि भारत जैसे देश में जहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है जी, और सरकार की भी दुविधा थी कि लॉकडाउन से हमें अनलॉकडाउन की तरफ जाना था जी, लेकिन सरकार ने जब भी दिशा निर्देश दिए हैं साथ में लोगों के लिए कुछ गाइडलाइन भी दी है जी, और गाइडलाइन में बिल्कुल क्लियर है कि बस में कितने लोग बैठेंगे, बस की दूरी क्या होगी जी, कितनी बसें चलेंगी, जैसे 50% बसें चलेंगी जी, 20 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे। तो इस गाइडलाइन को फॉलो करना सरकार की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो जब तक सरकार और लोग दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं करते हैं जी, तब तक यह गाइडलाइन फॉलो करना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जब भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करें इन गाइडलाइंस को अपने ध्यान में रखें। बिल्कुल ठीक है। सतर्क रहना और जागरूक होना बहुत जरूरी है आज के संकट के इस दौर में। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ चुकी हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, स्वागत के लिए आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जाड़े का मौसम आ गया, ओके, अगर हम सर स्कूल या कहीं भी जाते हैं, कॉलेज वगैरह, तो सर हम जैसे हाथ में दस्ताना लगा के जाएंगे, तो सर आप लोग बताते हैं कि जैसे ग्लव्स लगाते हैं तो भी कोरोना का बचाव होता है, तो सर ये एकदम ग्लव्स नहीं लगाते, दस्ताना लगा के जाते हैं जाड़े के मौसम में, तो सर क्या मतलब जो कोरोना इस वक्त काल चल रहा है, तो जैसे हाथ के माध्यम से आंखों वगैरह में जाता है, तो सर क्या हम अगर मतलब ग्लव्स न लगाना चाहें तो क्या सर ग्लव्स का काम दस्ताना कर सकता है? थैंक यू। डॉक्टर संजय, ये जानना चाहते हैं कि जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ आप जैसे कहते हैं कि उसको लगाना थोड़ा प्रोटेक्टिव है इस कोरोना संकट के इस दौर में। इनका सवाल ये है कि जो ऊनी दस्ताने हैं जो ठंड के मौसम में पहने जाते हैं, क्या वो सर्जिकल ग्लव्स की भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, इनका सवाल काफी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है जी, और मैं इनसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर इनके पास 2-3 पेयर्स हैं दस्ताने के जी, तो आप इसको यूज कर सकती हैं जी, अनलेस अनटिल आप किसी हेल्थ वर्कर की तरह काम कर रहे हैं या अस्पताल में आप कहीं काम कर रहे हैं, तो वहां आप इसको नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते जी, क्योंकि वहां आपको पेशेंट को छूना है या अस्पताल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है आपको करनी है जी। लेकिन अगर आप घर में रहते हैं और या आस पड़ोस में या किसी सामाजिक गतिविधि में लगे हुए हैं, तो आप इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई गलत चीज नहीं है जी। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास 2-3 पेयर ग्लव्स हो, 2-3 पेयर दस्ताने हो जी, और जिसको आप बारी बारी से या तो उसको साफ कर लें या उसको सैनिटाइज कर लें या उसको धो के सुखा लें, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से अर्जुन जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बोलिए, अपना सवाल बताइए। 4-5 दिन से मेरे को बुखार आ रहा है, उसके बाद ज्यादा तेज तो नहीं आता लेकिन ठंडी लेकर हल्का हल्का बुखार आता है और कुछ जुकाम भी है और नाक से पानी वानी भी आ जाता है, तो क्या कोरोना हो सकता है मेरे को? जी डॉक्टर संजय जी, अभी मैंने प्रोग्राम के शुरू में इस तरह के 1-2 सवालों का जवाब दिया जी, और कोशिश की लोगों को बताने की कि आजकल के जो मौसम है इसमें कॉमन फ्लू भी होता है जी, और कुछ लक्षण है जिससे हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं जी, लेकिन कई लक्षण मिलते जुलते हैं जी। तो अगर आपको बुखार है, अगर आपको गले में खराश है और अगर आपको तेज जाड़ा देकर बुखार आ रहा है, तो यह लक्षण फ्लू के भी हो सकते हैं, कोरोना के भी हो सकते हैं जी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट कराने की जरूरत है, तो आप अपने डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से मिलके आप टेस्ट करा लें। बिल्कुल, क्योंकि कोविड-19 एक नया वायरस है और कोविड-19 में कई बार पेशेंट थोड़ा सीरियस हो सकता है, तो इसके पहले वही स्थिति आए, बेहतर यही होगा कि आप उसकी जांच करा लें। दिल्ली से रमेश जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत जल्दी अपना सवाल पूछे, कार्यक्रम में समय बहुत कम है। हाँ जी, मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैंने ये पता करना है डॉक्टर साहब, जैसे हम सीनियर सिटीजन हैं तो घर पे ही रहते हैं, बाहर कभी कम ही निकलते हैं, लेकिन हमें और क्या प्रिकॉशन या ऐसे क्या निर्देश दे सकते हैं जिससे हम ठीक रहें घर में? डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में समय बहुत ही कम है, संक्षेप में आप इनका सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, इनका जवाब मैं यही दूंगा कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आपके लिए संदेश आ रहे हैं, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, 2 गज की दूरी बना के रखना, ये सारे संदेश आपके लिए और भी बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि किसी और पहलू पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे थे कि त्योहारों के इस मौसम में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप खरीदारी करने जाना चाहते हैं तो परिवार से एक व्यक्ति ही जाइए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए, मास्क जरूर लगाइए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रथमम् मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना सबलं प्रोक्तं सर्वेषां सुरक्षायै वृद्धये च सहयोगः उत्तरदायी दक्षिणपूर्व एशिया देशानां संघटनं च महत्वपूर्णम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं राष्ट्रं तदैव स्वावलम्बी भविष्यति यदा वयं संसाधनैः सह चिन्तने संस्कारेषु अपि आत्मनिर्भराः भविष्यामः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अर्थव्यवस्थां वर्धयितुं 12 मुख्योपायान् अघोषयत्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं पलायनम् अवरोद्धुं सीमवर्तिषु ग्रामेषु सर्वासाम् आधारभूतानां सुविधानाम् उपलब्धिः कारयिष्यते। अपि च कोविड महारोगात् स्वस्थीभूतामितिः एधित्वा 92.89% सम्प्राप्तम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः मुख्यं लक्ष्यं दक्षिणपूर्व एशियाई देशानां संघटनम् अस्ति। अद्य सायं 17तमे दक्षिणपूर्व एशियायाः राष्ट्रसंघटनस्य भारत शिखर सम्मेलने मोदिना अस्मिन् विषये बलं प्रदत्तं यत् सर्वेषां सुरक्षायै विकासाय च सहयोगी उत्तरदायी दक्षिणपूर्व एशिया संघटनं महत्वपूर्णम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् आत्मनिर्भर भारतस्य उद्देश्यं भौतिकीम् अथवा सांसारिकीम् आत्मनिर्भरतां यावत् सीमितं नास्ति। तेन उक्तं यत् एतत् गतिमत् चिन्तनम् अस्ति। अस्यान्तर्गतं बहव्यः वार्ताः सम्मिलिताः सन्ति। मोदिना उदीरितं यत् कोऽपि देशः तदैव आत्मनिर्भरः भवितुम् अर्हति यदा सः स्वचिन्तनं कार्याणां संसाधनानां च दृष्ट्या आत्मनिर्भरः भवेत्। श्रीमोदिना अद्य दृश्यश्रव्य सम्मेलनस्य माध्यमेन नवदिल्ल्यां स्थिते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य परिसरे स्वामी विवेकानन्द प्रतिमा अनावृत्तः। तस्य पश्चात् सः समारोहं समबोधयत्। श्रीमोदिना आशा प्रकटिता यत् स्वामिनः विवेकानन्दस्य प्रतिम्ना जनेषु राष्ट्रिय ऐक्य भावनायाः सञ्चारः भविष्यति, यः स्वामिनः चिन्तनस्य मुख्या प्रेरिका शक्तिः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा तत्रत्याः शोधछात्राः अन्वेषयितुम् उक्ताः यत् कथं सुपरिष्काराः भद्रराजनीत्यां विपरिणमयितुं शक्नुवन्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः प्रावोचत् यत् देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढतरा भवति। कारणम् अस्ति यत् अर्थव्यवस्थायाः सर्वे प्रमुखाः मानदण्डाः सकारात्मकाः सन्ति। तेन उक्तं यत् भारतेन कोविड-19 महारोगः प्रभाविभिः विधिभिः निवारितः। अनेन मृतानां मितिः निरन्तरम् अपचीयते। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन्ती वित्तमन्त्री न्यगदत् यत् देशस्य अर्थव्यवस्था दृढतरा जाता। ह्यः केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन गुजराते कच्छ जनपदस्य ढोर्ढो क्षेत्रस्य सरहद विस्तार विकासोत्सव 20-20 उद्घाटनं कृतम्। तेन उक्तं यत् सीमवर्तिनां क्षेत्राणां सर्वेषु ग्रामेषु समस्तानाम् आधारभूतानां सुविधानाम् उपलब्धिः कारयिष्यते।
देशस्य कोविड-19 महारोगात् स्वस्थीभूतामितिः वर्धित्वा 92.89% अभवत्। गत 24 होरायां 52,000 अधिकाः कोविड रोगिणः स्वस्थाः अभवन्। गत 24 होरायां 50,500 रोगिणः मृताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः दृश्य श्रव्य सम्मेलनस्य माध्यमेन जामनगरे आयुर्वेद शिक्षण अनुसन्धान संस्थानं, जयपुरे च आयुर्वेद संस्थानम् उद्घाटयिष्यति। इति वार्ताः।